हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 नवंबर को थर्ड शिफ्ट में, उसका इंग्लिश पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन आ रखे हैं अभी तक सारे जितने भी हमने टीजीटी सोशल साइंस के पेपर किए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज अ बेनिफिट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग राइट ब्रेन क्रिएटिव प्रोसेसेस into traditionally left brain dominating fields, increased focus on traditional methodologies and standards, enhanced visual appeal and aesthetic in design, improved adaptability and in handling challenges, innovation and problem solving. Question number 2 क्या है? The passage discusses the challenges of incorporating right brain creative processes into engineering and finance. Which of the following statement best describe these challenges? First option क्या है? The challenge lies in finding a balance between innovation and the rigorous standard of these professionals. Second option क्या है? The challenge lies in incorporating professional to rely solely on left brain processes. Third, the challenge is in limiting creativity to only visual aspects of design. Fourth, the challenge is that right brain thinking often leads to more predictable outcomes. Question number 3, tone of the passage कैसी है? Question number 4, select the most appropriate title of the passage. Question number 5 के एंटोनिम ऑफ द वर्ड एडेप्टेबिलिटी। अब हम सबसे पहले अपना पैसेज पढ़ लेते हैं फटाफट। इसको थोड़ा सा और बड़ा करती हूँ। ठीक है, देखो क्या है। Incorporating right brain creative process into traditionally left brain dominating fields such as engineering and finance can offer numerous benefits. But it also presents challenges that must be carefully managed. The benefits are innovation and problem solving. Right brain creative processes can drive innovation in engineering by encouraging engineers to explore unconventional solutions. For example, creative brainstorming might lead to the development of more efficient design or a novel application of existing technology. In finance, creativity can lead to innovative financial products and strategies that differentiate a firm from its competitors. Enhance design thinking, right brain thinking can improve the aesthetic and user experience of products. Engineers who engage in creative thinking might develop products that are not only functional but also visually appealing and user friendly. In finance, creative thinking can lead to more engaging and effective communication of complex financial data, making it more accessible to clients. Improved adaptability and creative thinking helps professionals in left brain dominating fields become more adapt- adaptable. For instance, engineers who are comfortable with creative processes may be better equipped to handle unexpected challenges and pivot when a project requires a new approach. Similarly, finance professionals who think creatively may be, may be more adept at developing strategies to navigate more volatility. Successful incorporating right brain creative processes into these fields require a balance between innovation and rigorous standards that define these professions. अब क्या है? Will not, वापस छोटा करती हूँ एक बार। क्या नॉट मेंशन एज अ बेनिफिट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग राइट ब्रेन क्रिएटिव प्रोसेस इनटू ट्रेडिशनली लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटिंग फील्ड्स। इंक्रीज फोकस ऑन ट्रेडिशनल मेथडोलॉजीज एंड स्टैंडर्ड, ये तो अभी तक कहीं लिखा दिखाया नहीं। एस्थेटिक इन डिज़ाइन, ये मैंने अंडरलाइन किया था। इम्प्रूव्ड एडेप्टेबिलिटी इन हैंडलिंग चैलेंजेस, ये तो मेन बार बार आ रहा है पॉइंट। इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द पैसेज डिस्कस द चैलेंज इन of incorporating right brain creative process into engineering and finance. Which of the following statement best describe these challenges? The challenges the challenge lies in finding a balance between innovation and rigorous standards of these professions. The challenge lies in encouraging professionals to rely solely on left brain process.
नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि आप बस लेफ्ट ब्रेन पे ही सोली डिपेंड हो जाओ, तो ये नहीं हो सकता। क्या है, द चैलेंज इज इन लिमिटिंग क्रिएटिविटी टू ओनली विजुअल एस्पेक्ट ऑफ डिज़ाइन। देखो ये जो ओनली है ना, ये एक ऐसा वर्ड है कि आपको लिमिट कर देता है। तो जिस क्वेश्चन में ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में स्टेटमेंट में जिस स्टेटमेंट में आपको ओनली या ऑलवेज ऐसे वर्ड दिख जाए ना, तो वो हमारा आंसर होता नहीं है ज़्यादातर, तो ये भी नहीं है। द चैलेंज इज़ दैट राइट ब्रेन थिंकिंग ऑफन लीड्स टू मोर प्रिडिक्टेबल आउटकम्स। हम ऐसे पर्टिकुलर कैसे कह सकते हैं कि राइट ब्रेन थिंकिंग ज़्यादा प्रिडिक्टेबल आउटकम्स दे सकते हैं, तो ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पैसेज? ऑप्टिमिस्टिक एंड इंस्पायरिंग, क्रिटिकल एंड डिसअप्रूविंग, एनालिटिकल एंड बैलेंस्ड, पेसिमिस्टिक एंड क्वेश्चनरी। तो कैसी टोन है? देखो, जो पैसेज है उसने डिस्कस किया है बहुत बेनिफिट्स और चैलेंजेस, ना तो स्ट्रॉन्गली प्रेज किया है और ना किसी क्रिटिसाइज किया आइडिया को, तो इवेल्युएट किया थोरली। तो हम क्या कह सकते हैं? एनालिटिकल एंड बैलेंस्ड। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द पैसेज क्या है? चैलेंजेस इन engineering and finance, balancing creativity with structure of professional fields, the role of right brain thinking in traditional professions, overcoming left brain limitations। देखो, हम राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को ऐसे पर्टिकुलर नहीं बता सकते हैं। बैलेंसिंग क्रिएटिविटी विद स्ट्रक्चर इन प्रोफेशनल फील्ड्स, ये सबसे अच्छा टाइटल लग रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एंटोनिम ऑफ द वर्ड एडेप्टेबिलिटी। पहले तो एडेप्टेबिलिटी का हमारे को मतलब पता होना चाहिए। तो एडेप्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? एबिलिटी टू एडजस्ट और चेंज अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशंस। मैं यहाँ लिख देती हूँ, एबिलिटी टू एडजस्ट और चेंज अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशंस। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इनएबिलिटी टू एडजस्ट, रिकरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी, इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ न्यू इन्वेंट करना। रिजिडिटी, आप बिल्कुल क्या हो गए हो? रिजिड हो गए हो, स्टिफनेस आ गई है। इनएबिलिटी हो गई है, इनएबिलिटी टू चेंज। तो हमारा आंसर क्या हो गया? रिजिडिटी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और जो ऑप्शंस हैं उनके मीनिंग्स देख लेते हैं। रिकरेंस मीन्स रिपीटेशन, रिपीटेशन। फ्लेक्सिबिलिटी एक तरह से सिनोनिम हो गया, एडेप्टेबिलिटी का, एबिलिटी टू एडजस्ट और चेंज अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशंस। रिजिडिटी मीन्स इनएबिलिटी टू चेंज। इनोवेशन मीन्स क्रिएटिविटी या न्यू थिंग्स। तो हम क्रिएटिविटी लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, select the most appropriate conjunction to fill in the blanks. The artist experimented with new techniques dash maintaining her signature style dash her recent work was both familiar dash innovative। देखो क्या वर्ड आना चाहिए? जो उसका रिसेंट वर्क है वो फेमिलियर भी है, उस जो उसके सिग्नेचर स्टाइल का उससे भी है, और एक न्यू इनोवेटिव भी है। तो हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे? हम येट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि येट क्या बताता है? येट कॉन्ट्रास्ट बताता है, बहुत फेमिलियर येट इनोवेटिव। तो कॉन्ट्रास्ट बता रहा है ना, येट क्या बताता है? कॉन्ट्रास्ट। तो थर्ड ऑप्शन में कॉन्ट्रास्ट, येट बस इसमें ही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब और फिल इन द ब्लैंक्स में देख लेते हैं। यहाँ क्या आएगा? वाइल द आर्टिस्ट एक्सपेरिमेंटेड with new techniques while maintaining her signature style, so her recent work was both familiar yet innovative। while यहाँ पे contrast happening at the same time शो कर रहा है, और so क्या? रिजल्ट शो कर रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 7, select the most appropriate substitute of the underlined segment in the given sentence। James is a person who talks excessively about his achievement, constantly boasting about his successes and never missing a chance
to highlight its own accomplishment. तो देखो, an altruist, an execution, a braggart या a spinsterhood. इनका एक बार मीनिंग देख लेते हैं क्या क्या होता है. Altruist means someone who is selfless. Someone who is selfless and concerned for others. Execution का मतलब है own execution. Does एग्जीक्यूशन मतलब हम किसी चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब किसी काम को उसकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं, तो वो एग्जीक्यूशन हो गया. अब ब्रैगरेट इसका क्या मतलब होता है? हु बूस्ट अ पर्सन हु बूस्ट एक्सेसिवली अबाउट देयर अचीवमेंट. बूस्ट excessively about their achievements. Spinsterhood means the state of being an unmarried woman, especially in older or traditional usage. Spinsterhood मतलब the state of being an unmarried woman, especially in older or traditional usage. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम. When Sheena turned 50, she decided to live her life in a fast lane. देखो यहाँ से ही हमारे को पता चल रहा है, जब शीना 50 की हुई तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी जो लाइफ है वो फास्ट लेन में जिएगी. मतलब एनर्जेटिकली, एंथुसियास्टिकली, बहुत अच्छी तरह जितनी लाइफ है उस मतलब उसके बाद की लाइफ एक्साइटिंग, एनर्जेटिक एंड एडवेंचरस लाइफ जीना स्टार्ट करेगी. डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन्स इन्वॉल्व गो टू इनसेन टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर अ लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट. तो यहाँ से आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन्स इन्वॉल्व का क्या मतलब है? ये एक ईडियम का मतलब रिलेट कर रहा है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ. स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ. गो टू इनसेन यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है. टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर का क्या मतलब है कि सक्सेस क्या इम्प्रूवमेंट स्टार्ट कर दो. क्वेश्चन नंबर 9. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम. श्याम इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक एंड सिंग्स जस्ट लाइक हर फादर यूज टू. देखो, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक ये अभी तक 3 से 4 बार आ चुका है, तो इसका मतलब क्या है? सिमिलर इन बिहेवियर और एक्शंस ऑफ वन पेरेंट. तो हमारा आंसर क्या हो गया? बीइंग सिमिलर इन बिहेवियर और एक्शंस टू वन पेरेंट. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. बीइंग अ डिस्ग्रेस ऑफ वन फैमिली, नहीं, यही है आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. Sentence of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. देखो किससे स्टार्ट हो सकता है? बी से, ए से, फिर बी लिखा है और एफ. बी, ए और एफ से स्टार्ट हो सकता है. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ए. फर्स्ट, इट इंक्रीज एफिशिएंसी एट द वर्क प्लेस. ए तो बाद में आएगा, वो बता रहा है कि पहले कि उसकी एफिशिएंसी वर्क प्लेस पे इंक्रीज होनी चाहिए. बी पढ़ते हैं. देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT इन एजुकेशन. ठीक है, बी ये हो गया. एफ पढ़ते हैं. वेदर इट इज़ मैनेज्ड ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स कंडक्टिंग ऑनलाइन एडमिशन्स और प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट्स. तो साफ पता चल रहा है कि ICT के
एडवांटेजेस जो एजुकेशन में है उसके बारे में बात हो रही है, तो बी से ही स्टार्ट होगा और ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बी के बाद ई आएगा या ए आएगा? ई पढ़ते हैं हम। मैनी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस विच कैन नॉट बी डन बाय ह्यूमन बींग्स कैन बी ईजली परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर। बट हमारे को तो पता, पहले तो ये बताएंगे ना कि आईसीटी एजुकेशन में एक एडवांटेज है। पहले सबसे पहले फर्स्ट वो एफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है वर्क प्लेस पे, तो बी के बाद ए आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, बी, ए, डी, ई, एफ एंड सी। Question number 11. Select the most appropriate option to fill in the blanks. Dash National Testing Agency NTA released dash answer key for CUET UG 2024 on Sunday. तो देखो NTA एक एजेंसी है जो नेट का पेपर लेती है या CUET का पेपर लेती है, तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एजेंसी है, तो ये क्या यूज़ करेंगे? द NTA रिलीज किस पर्टिकुलर पेपर के आंसर की रिलीज़ की है? CUET UG 2024 की, तो द आंसर की फॉर CUET UG 2024 ऑन संडे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12. सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड करेक्टर, सफिशिएंट, प्रोग्रेस। देखो प्रोग्रेस यहाँ पे ये चारों वर्ड बहुत ईजी हैं। करेक्टर, सफिशिएंट, पॉसिबल, ये तीनों तो सही हैं। प्रोग्रेस की स्पेलिंग क्या होती है? PROGRESS। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13. Select the option that can be used as one word substitute for the underlined group of words in the sentence. He decided that he would not take the award because he was required to make a speech about the emerging trends in this field of study and he had an excessive fear of public speaking. देखो हमारे को क्या बताना है? एक्सेसिव फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के लिए एक वन वर्ड सब्सिट्यूट। एबोफोबिया, ग्लासोफोबिया, टेपियोफोबिया या डायोफोबिया। देखो एबोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ पैलेंड्रोम्स, फियर ऑफ पैलेंड्रोम्स। अब पैलेंड्रोम्स क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, तो हम वो यहाँ देख लेते। पैलेंड्रोम्स क्या होता है? अ वर्ड, phrase, number or sequence of symbols that reads the same backward and forward. Symbols that reads the same backward and forward. देखो मैं इसके एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल मैडम, ये सेम है MADAM और MADAM है ना। और डेट देखो एक 12/02/2021, ये भी सेम है। तो जैसे तो यही होता है जब आगे और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बिल्कुल सेम हो जाता है, उसको कहते हैं पैलेंड्रोम्स। अब हम अपने आते हैं ग्लासोफोबिया। ग्लासोफोबिया का क्या मतलब? फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। कलर वापस चेंज कर लेती हूँ। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। टैपेफोबिया, टैपेफोबिया इज fear of being buried alive, fear of being buried alive. And anatidaephobia is fear that a duck is watching you, fear that a duck is watching you. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Question number 14. Select the most appropriate option to fill in the blanks. If no article is required, select the option with no article required. During our trip, we visited Dash Eiffel Tower and enjoyed an amazing view of Paris from Dash top. देखो आईफिल टावर पर्टिकुलर एक
मतलब एक मॉन्यूमेंट है, इकलौती मॉन्यूमेंट है पेरिस में। इकलौती नहीं वर्ड यूज़ करेंगे, मतलब एक फेमस मॉन्यूमेंट है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, द। वी विजिटेड द आईफिल टावर एंड एन्जॉय एन अमेजिंग व्यू ऑफ पेरिस फ्रॉम पर्टिकुलर टॉप, है ना उसका, पेरिस का टॉप से ही आप देख रहे हो, एक आईफिल टावर के टॉप से ना, इसलिए द टॉप। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Question number 15. Select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. She believes that the earth is flat, making her the ultimate heretic. Heretic का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें। तो heretic का मतलब होता है a person whose religious beliefs are believed to be wrong or evil. To be wrong और इविल, तो इसको हम हिंदी में कह सकते हैं अधर्मी, है ना। तो इसका एंटोनिम मतलब जो धर्म को बहुत मानता हो, कुक, एब्रेंट, ऑडबॉल या कन्फर्मिस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, कन्फर्मिस्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं कुक क्या कौन होता है। कुक होता है एक्सेंट्रिक और क्रेजी पर्सन। एन एक्सेंट्रिक, ECC, एक्सेंट्रिक और क्रेजी पर्सन। एब्रेंट मतलब एबनॉर्मल और डेविएटिंग फ्रॉम द नॉर्म्स। मतलब ये तो सिनोनिम हो गया किसका, हेरेटिक का। एबनॉर्मल, डेविएटिंग फ्रॉम द नॉर्म्स। ऑडबॉल, अ स्ट्रेंज और अनयूजुअल पर्सन। अ स्ट्रेंज और अनयूजुअल पर्सन। और तो आंसर क्या हो गया हमारा, कन्फर्मिस्ट। कन्फर्मिस्ट का क्या मतलब होता है, एक्सेप्ट एंड फॉलोज कन्वेंशनल बिलीव्स। एक्सेप्ट, अ पर्सन हु एक्सेप्ट एंड follows conventional beliefs। ठीक है, आंसर बता दिया ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हर बिहेवियर वाज इम्पेकेबल ड्यूरिंग द मीटिंग। इम्पेकेबल का क्या मतलब है, इम्पेकेबल मीन्स परफेक्ट, फ्लॉलेस, विदाउट फॉल्ट। परफेक्ट, फ्लॉलेस और विदाउट फॉल्ट। तो हमारा एंटोनिम पूछा है, फ्राइटनिंग, इनएडिक्वेट, कॉम्बेटिव या बिवर्ल्डर्ड। एक और मीनिंग देख लेते हैं। फ्राइटन मतलब फियर ऑफ, रिलेट्स टू फियर, रिलेट्स टू फियर। इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मीन्स नॉट गुड इनफ और लैकिंग रिक्वायर्ड क्वालिटी। नॉट गुड इनफ और lacking required quality. Combative, combative is means aggressive. Bewildered means confused. तो हमारा आंसर क्या हो गया, इम्पैकेबल है परफेक्ट, फ्लॉलेस, और इनएडिक्वेट इज नॉट गुड इनफ और लैकिंग रिक्वायर्ड क्वालिटी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पैकीडर्मस, कैहीक्लास्ट, क्विजोटिक या ऑफस्केशन।
अगर हम इसकी देखो प्रोनाउंसिएशन देखें तो क्या है, पैचीडर्मस, PACHYDERMOUS, तो यहाँ पे ओ भी आता है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। पैकीडर्मस का क्या मतलब होता है, थिक स्किन्ड, थिक स्किन्ड। कैही क्लास का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है इनफॉर्मल सोशल गैदरिंग फॉर कॉन्वर्सेशन, इनफॉर्मल सोशल गैदरिंग फॉर कॉन्वर्सेशन। Quixotic means idealistic or impractical. Idealistic but impractical. Obfuscation means deliberate confusion or obscurity. Question number 18. Select the most appropriate option to fill in the blanks. The book you are looking for is right there dash the table next to the lamp. देखो जब बुक कहाँ रखी है, वो टेबल पे रखी है लैम्प के साथ में, तो क्या है, ऑन द टेबल टू नेक्स्ट टू द लैम्प। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Question number 19. Sentence of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentence in the correct or right order to form a meaningful and coherent paragraph. किससे स्टार्ट हो रहा है, देखो डी से, बी से, ई से, तो दो ई है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बी। However, due to the shock and trauma of the incident, I was completely oblivious to the gravity of my injuries and potentially long-term consequence they might entail. अब डी पढ़ते हैं। As my classmate, in a moment of carelessness, took a full swing with the bat, it suddenly and unexpectedly slipped out of his grasp, sending the bat flying uncontrollably towards me with immense force. किसके बारे में बात हो रही है, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है, बस बैट उड़ के आ गया, मैं ट्रॉमा में चला गया, इंसिडेंट हो गया, फलाना फलाना। ई क्या लिखा है, ऑन द फाइनल डे ऑफ माई शॉप हॉर्ट में year of high school, in a freak and terrifying accident, I was violently struck in the face and with a baseball bat, an incident that would have a profound impact on my life. Yes, ई से पता चल रहा है जब उसका लास्ट डे था हाई स्कूल का, तो क्या हुआ, एक टेरिफाइंग इंसिडेंट हो गया, एक बेसबॉल बैट वॉलेंटली मेरे फेस के सामने आ गया और ये इंसिडेंट ने मेरी पूरी लाइफ को इम्पेक्ट किया। ई से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ई के बाद अब डी आएगा या बी आएगा, अब ये देखते हैं। डी क्या है, एज माई क्लासमेट इन अ मोमेंट ऑफ केयरलेसनेस took a full swing with the bat, it suddenly and unexpectedly slipped out of the grasp, sending the bat flying uncontrollably towards me with immense force. और बी क्या है, हाउ ड्यू टू ट्रॉमा ऑफ इंसिडेंट। नहीं, ये तो बाद की बात है ना कि उस इंसिडेंट की ट्रॉमा से क्या क्या हुआ, तो पहले क्या आएगा, डी। ई के बाद डी, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20. Select the most appropriate conjunction to fill in the blanks. The company launched a new product line dash the market was saturated dash it targeted a niche audience dash the sales surpassed expectations. देखो क्या क्या आ रहे हैं, फर्स्ट वाले, पहले फर्स्ट वालों को पढ़ते हैं क्योंकि सारे ऑप्शन अलग है। डिस्पाइट ऑल दो अनलेस एंड बिकॉज द कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट लाइन डिस्पाइट द मार्केट वाज सैचुरेटेड। डिस्पाइट वर्ड यहाँ पे ठीक है क्या, या ऑल दो का क्या मतलब होता है, इंट्रोड्यूस कॉन्ट्रास्ट, मतलब मार्केट अलग अलग प्रोडक्ट से भरी हुई है, फिर भी जो कंपनी है उसने न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च की है। डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद, तो यहाँ पे ऑल दो वर्ड सही लग रहे हैं। आगे पढ़ लेते हैं एक बार। ऑल दो द मार्केट वॉज सेचुरेटेड,
येट इट टारगेट अ नीच ऑडियंस, मतलब येट यहाँ पे सही है कि उसने एक जो लो लेवल ऑडियंस है या नीच ऑडियंस है उनको टारगेट किया है। जब ठीक है तो आगे क्या है, कॉन्सिक्वेंटली द सेल सरपास एक्सपेक्टेशंस, साथ साथ क्या हुआ, जो सेल्स है वो बहुत बढ़ गई, एक्सपेक्टेशन से भी सरपास हो गई। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।